Hello everyone. Welcome to Learning and Solution. I'm Stuti Sarpal, ready to present poem 1 from your book Hornbill, a photograph. This poem has been written by Shirley Toulson, and to have this poem just after the chapter A Portrait of a Lady is very important. क्यों important है? Because वो chapter भी relationships के बारे में है, उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में है, उनकी ब्यूटी के बारे में है. एंड इन दिस पोएम ऑल्सो वी हैव अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप ऑफ अ मदर एंड अ डॉटर डिपिक्टेड इन द पोएम. तो उसी मदर डॉटर रिलेशनशिप के ऊपर ये पोएम शिरली टूल्सन ने लिखी है, जो कि बहुत पोएम्स जो हैं इसी टॉपिक के ऊपर, रिलेशनशिप्स के ऊपर लिखती हैं. So let's go through the current poem and understand it and try to feel the beauty of the relationship of a mother-daughter relationship. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she, the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's, and that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. Let's try to understand what the poet is saying or conveying to us in the first stanza. The cardboard shows me how it was. The cardboard. बहुत important है ये जानना. The cardboard. The cardboard here refers to the hard back on which the photograph was pasted. जैसे पुराने ज़माने में होता था, फोटोग्राफ्स को फ्रेम नहीं करते थे, तब इतना ट्रेंड में नहीं था एल्बम में लगाना या उनको किसी फ्रेम में लगाना. और अब तो बिल्कुल ही एरा चेंज हो गया है, हम हार्ड कॉपीज बनाते ही नहीं है. वी हैव ऑल दी फोटोग्राफ्स इन सॉफ्ट कॉपीज ओनली, हमारे फोन्स में, हमारे लैपटॉप्स में. तो ये उस एरा की पोएम है जब पिक्चर्स को संभाल के रखने के लिए उन्हें कार्डबोर्ड के ऊपर पेस्ट किया जाता था. और ऐसी ही एक कार्डबोर्ड पे पेस्ट हुई हुई पिक्चर को हमारी जो पोएट हैं शिरली टूल्सन, वो देख रही हैं. एंड व्हाट इज शी सीइंग इन द फोटोग्राफ? शी इज सीइंग दैट the cardboard shows me how it was, how that moment was, the moment of the sea holiday, the sea holiday on which the mother and the cousins had gone. The mother of Shirley Toulson, the poetess, and her cousins had gone. उस sea holiday को उस पिक्चर में देखा पोएट ने. When the two girl cousins went paddling, पानी में पैर को छपकते हुए चल रहे हैं. Each one holding one of my mother's hand. दोनों गर्ल्स ने, जो उन पोएट की जो मदर की कजन्स हैं, उन्होंने एक एक तरफ से उनकी मदर का हाथ पकड़ा हुआ था. And she, the big girl, probably the poetess's mother, was the eldest of all. वो सबसे बड़ी थी. Some 12 years or so, हमें पोएम में ही बताया हुआ है that the mother was 12 years of age. All three stood still to smile through their hair. तीनों के तीनों मदर और उनकी दोनों कजन्स वो स्टिल खड़े हो गए, स्माइल कर रहे हैं कैमरा की तरफ, पिक्चर के लिए पोज कर रहे हैं. एंड दे आर स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर, क्योंकि शायद एक मीठी हवा चल रही है, ब्रीज चल रही है, जिसकी वजह से बाल उड़ के उनके फेस के ऊपर आ गए हैं. तो बाल फेस पे बिखरे हुए हैं और उस बालों में से वो स्माइल कर रही हैं. At the uncle with the camera. So we have an uncle, we have three girls, the mother of the poet and the two cousins who have gone for a sea holiday. A sweet face.
My mother's that was before I was born. मेरे born होने से पहले My mother had a really sweet face. और जैसा इस पिक्चर में डिपिक्ट हो रहा है, she is a sweet faced girl. And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. These are very important lines of the poem. The poet is trying to say that the mother was beautiful then, before the poet was born, but over a period of time, probably her beauty has reduced. वो उनकी जो यूथ है, उनकी जो सुंदरता है, उसमें कुछ कमी आ गई है. ऑफ कोर्स जब हम एज हो जाते हैं तो हमारी वैसी ब्यूटी नहीं रहती जैसी हमारी होती है जब हम अपने यूथ में होते हैं. इसी बात को एम्फसाइज करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए अगली दो लाइंस में एक कॉन्ट्रास्ट शो करा क्या है. द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस. मदर चेंज हो गई, तब बहुत सुंदर थी, अब शायद उतनी सुंदर नहीं है. ठीक है, उनकी ब्यूटी टाइम के साथ कम हुई, लेकिन सी तब भी वैसा था और आज भी वैसा है. बिकॉज सी इज इमॉर्टल. वो इतने सालों पहले भी सी ऐसा ही था और अभी भी वैसा ही है. वो बिल्कुल बदला नहीं है. एंड वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि इसमें पोएटिक डिवाइसेस काफी यूज हुए हैं. वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. The first and the most easily traceable poetic device, जिसको आप बहुत अच्छे से और आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो, your poetic device is alliteration. इस लाइन में alliteration यूज हुई है. alliteration क्या poetic device है? In which two sounds, similar sounds come very close to each other in a sentence. एक सेंटेंस में सिमिलर साउंड्स अगर आ रही हैं आसपास कहीं पर भी, बेशक वो एक के साथ एक कंसेक्यूटिव वर्ड्स में न भी हो, तो उसको alliteration कहते हैं. अक्सर देयर इज अ कंफ्यूजन. लोग ये कहते हैं alliteration जो है साइड बाय साइड वर्ड्स में सिमिलर साउंड होने चाहिए, और वो साउंड भी नहीं बोलते, वो बोलते हैं सिमिलर अल्फाबेट होना चाहिए. तो हम ये गलती कर देते हैं, सिर्फ अल्फाबेट को देखकर alliteration निकालते हैं. जरूरी नहीं है, अगर अल्फाबेट हमारा सेम न भी हो लेकिन साउंड सेम है तो alliteration माना जाएगा. एज ऑफ नाउ यहां पर तो ट का साउंड है, तो टेरिबली और ट्रांजिएंट में आपको alliteration नजर आ रहा है. अपार्ट फ्रॉम दिस, you also understand that feet वर्ड में एक पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है जिसका नाम है सिनेक्डोकी. सिनेक्डोकी का मतलब होता है जब आप एक पार्ट को, एक नाउन को कंप्लीट नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर लेते हो. जैसे इस प्रेजेंट केस में फीट मीन्स ह्यूमन बींग्स. फीट डज नॉट मीन खाली पैर. फीट डज नॉट मीन ओनली द पर्सन इन द पोएम. Feet means the entire human body, the entire human race here. Fine. So एक part of body ने complete part को represent किया, इसीलिए it is synecdoche. If we say Lahore will answer Delhi, what is the meaning of Lahore will answer Delhi? लाहौर मीन्स पाकिस्तान. पाकिस्तान मीन्स पाकिस्तान की गवर्नमेंट विल आंसर दिल्ली. दिल्ली मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो पूरी गवर्नमेंट को किसने रिप्रेजेंट किया? दिल्ली ने. उनकी पूरी गवर्नमेंट को किसने रिप्रेजेंट किया? लाहौर ने. सो वन नाउन व्हेन रिप्रेजेंट्स द एंटायर नाउन, इट इज कॉल्ड सिनेक्डोकी. फाइन. There is another example that I can give you is the heart that gave the passion.
The heart that fed in the poem Ozymandias. So, who gave the passion onto the face of Ozymandias? That was the heart. So, heart does not mean only heart. हार्ट मीन्स ऑजिमांडियस का जो पूरा पर्सनालिटी था, उसकी जो थिंकिंग थी, वो उसके चेहरे पर एक्सप्रेशंस लेके आ रही थी. एंड द हैंड दैट कार्व्ड, उन फीलिंग्स को एक हैंड ने कार्व्ड किया. अब खाली एक हैंड कार्व कर सकता है? नहीं, हैंड नहीं कार्व कर सकता. वो एक स्कल्प्टर का, वो एक शिल्पकार का, वो एक आर्टिस्ट का हाथ था जिसने वो एक्सप्रेशंस को कार्व करा एक और मतलब एक पत्थर के ऊपर. लेकिन पोयम में लाइन क्या है? द हार्ट दैट फेड एंड द हैंड दैट मॉक्ड. मॉक किया मतलब कार्व किया, उसको कॉपी किया इजीली. तो हार्ट इज रिप्रेजेंटिंग द पर्सन Ozymandias, king, and hand represents the artist, the craftsman who has copied that. So one part heart, one part hand represents the entire person Ozymandias and the artist. Similarly, here feet represents the entire human body, human beings. So the sea, which is supposed to be immortal, washed their terribly transient feet, washed the feet of human beings, washed human beings' feet. And at the same time, it may also mean literally that there were footprints. So feet में एक तो synecdoche आया, it may represent human beings. It may represent actual footprints. जो सी का पानी था, वो जो फुटप्रिंट्स बन रहे थे सैंड के ऊपर, इनके चलने से उनको मिटाता जा रहा था, फुटप्रिंट्स को मिटाता जा रहा था. तो जो फुटप्रिंट्स हैं वो ट्रांजिएंट थे. ट्रांजिएंट मीन्स मॉर्टल थे, बहुत ही टेम्पररी थे. जो भी चीज इमॉर्टल होगी वो परमानेंट होगी. तो कॉन्ट्रास्ट है परमानेंट चीजों में और टेम्पररी चीजों में. क्या कॉन्ट्रास्ट है? कि जो परमानेंट चीज थी, जो सी था, वो कंटिन्यूअसली वॉश कर रहा था जो फुटप्रिंट्स बनाए हैं. ये एक इंटरप्रिटेशन है. सेकेंड इंटरप्रिटेशन है कि वो ह्यूमन बींग्स को, जो है ह्यूमन रेस को हटा रहा था, उनके पैरों को वॉश कर रहा था. ठीक है. Some 20-30 years later, she had laughed at the snapshot. She. Who is she here? She refers to the mother of the poet. जब ये पिक्चर क्लिक हुई उसके 20-30 साल बाद, एट दैट टाइम द मदर वॉज 12 years old. तो 20-30 साल बाद मीन्स अराउंड 32 to 42 वाले एज गैप ग्रुप में, द मदर सॉ द पिक्चर, द फोटोग्राफ. शी हैड लाफ एट द स्नैपशॉट एंड शी लाफ्ड एंड शी स्माइल्ड एट द मेमोरीज. And she said, see Betty and Dolly. यहां पे हमें पता चला कि वो जो दो कजन्स थे जो सी हॉलिडे पे पोएट की मदर के साथ गए थे, उनका नाम क्या था? बेटी एंड डॉली. She had said, and look how they dressed us for the beach. And she's laughing at the way the parents dressed them up for the beach holiday. हंसी आ रही है कि कैसे मम्मी पापा ने हमें तैयार किया हुआ था. It's a very common human feeling. अक्सर आप लोगों ने भी ऐसा इमेजिन किया होगा, सोचा होगा, बोला होगा कि कैसे तैयार करते थे हमें, बिकॉज उस समय टाइम कुछ और था. नाउ विद पैसेज ऑफ टाइम यू ग्रो अप, ट्रेंड्स बदलते हैं, वे ऑफ ड्रेसिंग चेंज होती है. तो उस समय के हिसाब से प्रोबेबली पेरेंट्स ने अपना बेस्ट ड्रेसअप किया हुआ होगा, लेकिन वो आज की डेट में वियर्ड लग रहा है.
अजीब लग रहा है। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, एक पास्ट मेमोरी जिसको देखकर वो टाइम स्पेंड कर रही थी, स्माइल कर रही थी, नॉस्टैल्जिक फील कर रही थी पुरानी यादों को सोचकर। माइन इज हर लाफ्टर, माइन, माइन, माई पास्ट। दो पास्ट इवेंट्स की बात है, मदर का पास्ट है उनका सी हॉलीडे, और पोएट का पास्ट है मदर को मुस्कुराते हुए देखना, स्माइल करते हुए देखना। क्यों पास्ट है, यू विल कम टू नो इन अ वाइल। लेट्स रीड द पोएम फर्दर टुगेदर। बोथ री विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अक्सर एग्जाम में सेट हो जाती हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। बोथ री, both have become tired, both have become fatigued with the labored ease of loss। दोनों का लॉस हुआ है, मदर का लॉस हुआ है, उनका यूथ, उनके वो हैप्पी मोमेंट्स चाइल्डहुड के, और पोएट का लॉस हुआ है जो हमें अभी पता चलेगा। वो अपनी मदर की अब स्माइल नहीं देख सकती हैं, सो इट्स अ बिग लॉस फॉर हर। विद लेबर्ड ईज, एक पेक्यूलियर सा फ्रेज है, लेबर्ड ईज। जिस चीज को करने में लेबर लग रही है, हार्डवर्क लग रहा है, वो इजी कैसे हो सकती है? सो व्हेन वी यूज टू कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स साइड बाय साइड, हम दो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स को साइड बाय साइड यूज करते हैं, तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस यूज कर रहे हैं, ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन का मतलब है टू कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स आपने साइड बाय साइड यूज किए। ये तो एक कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड का आइडिया यहां पे मेंशन्ड है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं और तो डेविलिशली इनोसेंट। इफ समथिंग इज डेविलिश, राक्षसी, वो इनोसेंट कैसे हो सकता है? मासूम कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हमने दो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स को साइड बाय साइड यूज किया है किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, तो ये ऑक्सीमोरॉन है। इफ आई टॉक अबाउट अनदर एग्जाम्पल, स्वीटली जेलस। जेलसी इज अ नेगेटिव टर्म। किसी से जेलस होना तो एक बहुत ही नेगेटिव फीलिंग है, तो स्वीटली जेलस, एक नेगेटिव फीलिंग स्वीट कैसे हो सकती है? ठीक है ना। लेकिन तब भी अगर हमने दो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स को किसी कॉन्टेक्स्ट में एक साथ यूज करा है, साइड बाय साइड यूज करा है, कंसेक्यूटिवली यूज करा है, दैट लिटरेरी डिवाइस, लिटरेरी क्यों बोल रही हूं मैं, अगर मैंने पोयम में यूज करा तो वो पोएटिक डिवाइस है, ऑक्सीमोरॉन है। अगर मैंने उसको अपने किसी प्रोज में, किसी चैप्टर में यूज करा तो वो मेरा लिटरेरी डिवाइस है। कॉन्सेप्ट वही है, अगर पोएम में यूज हो रहा है पोएटिक डिवाइस, अगर कहीं और यूज हो रहा है जो पोएम नहीं है तो लिटरेरी डिवाइस। ठीक है। सो फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि हम पोएम कर रहे हैं, तो हमारा पोएटिक डिवाइस जो यहां पे यूज हुआ है दैट इज ऑक्सीमोरॉन। द पोएट इज ट्राइंग टू से इन दिस लाइन, बोथ वी, दोनों बहुत टायर्ड हो गए, बहुत थक गए, बहुत होपलेस डिस्ट्रेस्ड हो गए, क्योंकि दोनों को बहुत मुश्किल से, कश्मकश करके एक्सेप्ट करना पड़ा अपने लॉस को। लॉस, मदर का जॉयफुल चाइल्डहुड, वो मेमोरीज उनकी कजन के साथ, और लॉस पोएट का जो हमें स्टैंजा में ऑलरेडी मिल चुका है, द स्माइल ऑफ द मदर। व्हाट एल्स डिड शी सफर, you will come to know in the next stanza. Now she's been dead nearly as many years as that girl lived. है ना? तो जो लॉस है बहुत बड़ा है,
पोएट का लॉस है उनकी मदर की डेथ। तो दोनों को लॉस सहना पड़ा। मदर को अपने तरीके से अपनी यूथ, अपनी ब्यूटी, अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज का लॉस सहना पड़ा और बहुत मुश्किलों से उसको एक्सेप्ट किया। और जो पोएट है उनको अपनी ममा, अपनी मदर का लॉस एक्सेप्ट करना पड़ा। अगेन बहुत मुश्किल है। शी हैज बीन डेड बहुत ही स्मार्टली हमें यह बताया गया है दैट व्हेन डिड द मदर डाई? शी डाइड एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। जितने साल वो लड़की पिक्चर वाली जी थी, अलाइव थी, उतना टाइम हो गया है मदर को पास अवे हुए हुए। मदर को मरे हुए उतना टाइम हुआ है जितना टाइम वो पिक्चर वाली गर्ल अलाइव थी। पिक्चर वाली गर्ल कितने साल की थी? 12 इयर्स की थी। तो हमें ये इन्फर करना है कि मदर डाइड 12 इयर्स अगो। And of this circumstance, this situation, loss of mother. There is nothing to say at all. She is at loss of words. It is such a sorrowful feeling. एक मदर के डेथ को एक्सप्लेन करना, उसके बारे में कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल होता है। एंड सिमिलरली द पोएट इज फीलिंग वेरी डिफिकल्ट एंड शी इज एट लॉस ऑफ वर्ड्स। शी कैन नॉट एक्सप्रेस हाउ शी इज फीलिंग ड्यू टू द डेथ ऑफ अ मदर, ड्यू टू द लॉस ऑफ हर मदर। इट्स साइलेंस साइलेंसेस। इट्स क्या है? The situation of mother's death. The vacuum in the life of the poet. Silences. Alliteration is obviously there. जो ये खालीपन उनकी लाइफ में आ गया है, ये जो वॉइड है उनकी लाइफ में, ये जो वैक्यूम है उनकी लाइफ में, ये जो कंडीशन है बिना मदर के रहने की, उसकी वजह से शी इजंट एबल टू स्पीक, नॉट इन एक्चुअल टर्म्स। शी इज एट लॉस ऑफ वर्ड्स। शी कैन नॉट डिस्क्राइब what this loss has done to her, how she feels at the loss of her mother. It is very important to understand कि तीनों स्टैंजाज में 3 अलग अलग फेजेस के बारे में डिस्क्रिप्शन की हुई है। अगर हम इसको एक बारी दोबारा से रिविजिट करें तो जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा है उसमें द पोएट हैज टॉक्ड अबाउट the childhood of the mother. जो सेकेंड स्टैंजा है, probably the childhood of the poet, or a phase in which the mother has grown old. And the last stanza, the third stanza, talks about a phase in which the mother is no more, plus the poet is an adult now. तो 3 अलग फेजेस की बात हुई है। जो पहला स्टैंजा जहां से पोएम स्टार्ट होती है वहां पे डिस्क्रिप्शन है पोएट की मदर का उनके कजन्स के साथ एक हॉलिडे पे, सी हॉलिडे पे जाना, उस वहां पे पिक्चर क्लिक होना और वहां पे उन्होंने कैसा एक्सपीरियंस किया
वो शो हो रहा है हमारे फर्स्ट स्टैंजा में। सेकेंड स्टैंजा में उसी पिक्चर को काफी इयर्स के बाद देखकर रिकॉल कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, मदर और उनकी डॉटर। उसी स्टैंजा की लास्ट लाइन से शुरू होकर नेक्स्ट स्टैंजा में मदर की डेथ एंड पोएट का अब मैच्योर हो जाना डिपिक्ट किया गया है। छोटी सी पोएम है, बहुत लंबा टाइम गैप कवर किया हुआ है, बहुत ब्यूटिफुली, एंड एट द सेम टाइम इट टॉक्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द डॉटर एंड द मदर एंड हाउ इट इज सच अ पेनफुल थिंग फॉर एनीवन to lose one's parents. Now quickly let's go through the question answers of this particular poem so that we can actually kind of recapitulate, हमने जितना कुछ भी पढ़ा है वो recapitulate हो जाएगा। आपके पास मोस्टली सारे probable questions के आंसर्स भी आ जाएंगे। Now what I have tried to do is that मैंने आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस को RTCs की फॉर्म में आपके क्वेश्चन आंसर्स में लिख दिया है, उनको यहां पे वीव कर लिया, प्लस कुछ क्वेश्चंस अपने पास से भी ऐड कर दिए ताकि कोई भी टॉपिक ऐसा ना बचे जो कि हमने कवर नहीं किया हुआ। कोशिश करिए कि सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएं। What does the word cardboard denote in the poem? Why has this word been used? ये particulars जो है first stanza पे based questions हैं। तो first stanza में cardboard क्यों use हुआ है? The word cardboard refers to the hard paper on which the photograph of the poet's mother and cousins was mounted or pasted. So it is very important to understand कि कार्डबोर्ड का मीनिंग क्या है। कार्डबोर्ड का मीनिंग है एक गत्ता, एक हार्ड बोर्ड जिसके ऊपर वो पिक्चर पेस्टेड है। यू कैन यूज द वर्ड माउंटेड और you can use the verb pasted. It will be very easy for you to remember the word pasted, but good vocabulary is mounted also. आप दोनों में से कोई भी word use कर सकते हो। It has been used to highlight that it is an old photograph and not a recent one. ये infer करना है कि कार्डबोर्ड की बात ही क्यों, कार्डबोर्ड पे माउंटेड फोटोग्राफी की बात क्यों? इसलिए क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि शिर्ली टूलसन was talking about an era जिसमें फोटोग्राफ्स ऐसे ही संभाल के रखी जाती थी। It was not an era in which photographs were kept in albums or they were framed. ठीक है? Next, same stanza में why did the girls go to the sea? Simple answer है the girls had gone to the sea for a vacation, for a holiday, for taking a break. आप इनमें से कोई भी पॉइंट लिख सकते हो। All are valid. The girls had gone to the sea for a vacation, holiday और taking a break. तीनों ही वैलिड पॉइंट्स है, कोई भी एक लिखना है, सारे लिख के एक्सेसिव नहीं लिखना। RTCs हैं, यूजुअली 1 मार्क क्वेश्चंस पे ही सेट होंगी। जहां पे 2 मार्क क्वेश्चन वाला क्वेश्चन होगा आई विल टेल यू कि ये 2 मार्क में भी सेट हो सकता है। What has the camera captured? The camera has captured the poet's mother and her cousins holding hands and smiling at the camera. हमने डायरेक्टली स्टैंडा से पिक किया है। A mild breeze blew, ये हमने इन्फर किया है कि बाल फेस पे कैसे आए होंगे। And their hair covered their sweet faces. तो हमने एक ही आंसर में बता दिया that we know they were sweet faced girls. हमने बता दिया that they were posing for a photograph और उनके बाल जो हैं वो फेस पे आके गिर रहे थे। Next question. Same stanza, first stanza.
Why does the sea appear to have changed less to the poet? The poet compares her mother and the sea. ये बात जब मैं आपके साथ पोएम डिस्कस कर रही थी तभी भी मैंने करी थी, टू शो द कॉन्ट्रास्ट। जब वो अपनी मदर को और सी को कंपेयर करती हैं तो वो ये फील करती हैं कि मदर तो चेंज हो गई क्योंकि उनकी ब्यूटी कुछ कम हुई विद पासिंग ईयर्स, बट सी इट्स द सेम। Her mother has changed a lot over the years, but the sea appeared to be the same. Explain the phrase terribly transient feat। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये 1 मार्क में भी आ जाता है और 2 मार्क में भी सेट कर देते हैं इसको। द फ्रेज terribly transient feat मीन्स, और हम अपनी ट्रिक यूज करेंगे, फर्स्टली द ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो मॉर्टल हैं, ट्रांजिएंट हैं, खाली फीट नहीं, पूरे के पूरे ह्यूमन बीइंग्स ही जो हैं वो मॉर्टल हैं, नश्वर हैं, जो बॉर्न हुए हैं उनको उनका डेथ भी होगा कभी ना कभी। सेकेंडली, it may refer to the footprints on the sand which are also quite temporary। जो footprints बन गए हैं sand के ऊपर पोएट की मदर और उनके कजन के चलने से, उनको वॉश अवे कर रहे हैं। तो जो फुटप्रिंट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा टेम्परेरी होते हैं, एकदम एक पानी की लहर आती है और उनको मिटा देती है। तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला फ्रेज समझना बहुत जरूरी है कि टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, मॉर्टल चीजें क्या हैं, टेम्परेरी चीजें क्या हैं, टेम्परेरी ह्यूमन बीइंग्स हैं और टेम्परेरी फुटप्रिंट्स हैं। इमॉर्टल क्या है? इमॉर्टल हमारा सी है जो इतने सालों से चेंज नहीं हुआ है। आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लास्ट लाइन ऑफ द स्टैंजा। ये क्वेश्चन मैंने पर्पसफुली सेट किया है यहां पे ताकि हम एक बार रिवाइज कर सकें कि हमने लास्ट लाइन ऑफ द स्टैंजा में क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस यूज पढ़े थे। फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट स्टैंजा की लास्ट लाइन है वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। तो इसमें हमने द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द लास्ट लाइन ऑफ द स्टैंजा आर एलिट्रेशन, हमने मेंशन किया टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, अंडरलाइन कर दिया फर्स्ट अल्फाबेट्स को, एंड सिनेक्डोकी, हमने एक्सप्लेन किया सिनेक्डोकी में feet refer to human beings, one noun feet refers to the complete human beings. Okay, now let's move on to the next stanza. Some 20-30 years later से लेकर ये स्टैंजा आपका खत्म हो रहा है, लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। एडवाइजेबल होगा प्लीज कीप योर स्टैंजा इन फ्रंट ऑफ यू। फाइन, अपनी पोएम का सेकेंड स्टैंजा आपके पास होगा तो आप इजीली समझ पाओगे कि क्या ये क्वेश्चंस हैं। एंड जितने भी आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, वो सभी इन्हीं आरटीसीज में कवर्ड हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं। So according to me, if you have done all these questions and listened to the explanation to the poem, this poem is completely done and you will be able to have a mastery over the poem. Who were Betty and Dolly? Betty and Dolly were the poet's mother's cousins. The poet's mother laughed at the snapshot. What did this laugh indicate? She laughed every time she looked at the snapshot because she remembered the joyful days of her childhood and how sillily their parents had dressed them. दोनों ही बातों को लेकर मदर एम्यूज होती थी, वो हंसती थी कि उनको अपनी जो चाइल्डहुड मेमोरीज हैं वो याद आती थी और ये याद आता था कि मम्मी पापा कैसे हमें स्कूल के लिए हॉलिडे के लिए तैयार करते थे, कैसे कपड़े पहनाते थे।
Explain, this is also a very important question. Explain both re with the labored ease of loss. The phrase means that both the mother and the poet feel distressed, both feel helpless, both feel sorrowful as they have suffered a loss. The mother lost her youth and the poet lost her mother. Both of them tried hard to accept the loss. इसीलिए बहुत लेबर कर कर, बहुत हार्डवर्क करके अब वो सिचुएशन को एक्सेप्ट कर चुके हैं. दोनों उसको ओवरकम करना चाहते हैं कि मदर अपनी यूथ को लेके अब इतना डिस्ट्रेस नहीं है, अपने चाइल्डहुड डेज को लेके इतनी ट्रबल्ड नहीं है, और जो पोएटिस हैं वो अपनी मदर के लॉस को लेकर अब उतना डिस्ट्रेस नहीं है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है उसको. Which two things have become past? The sea holiday of the mother and her youth, and the poet's mother's laughter. Both have become things of the past. पोएट की मदर की हंसी और पोएट की मदर पोएट के लिए और मदर के लिए उनकी यूथ और उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज पास्ट की चीजें हो गई हैं. Which poetic device has been used in the last line? In the last line, if we could just have the stanza in front of us, the last line of the second stanza is with the labored ease of loss. In the last line, oxymoron has been used. Two words with contrasting meaning have been simultaneously या consecutively, आप कोई भी एक word use कर सकते हो, used labored ease में. Labored means with a lot of trouble, with a lot of effort, बहुत मुश्किल से, बहुत हार्डवर्क करके अपने आप को ईज किया है, एक्सेप्ट किया है, अपने आप को उस सिचुएशन से समझौता करवाया है. Now the last stanza, उसकी RTCs. What does this circumstance refer to? This circumstance refers to the, आप कोई भी word use कर सकते हो, death, passing away, demise of the poet's mother. तीनों एक साथ यूज नहीं करने, कोई भी एक यूज करना है जो आपको याद रहे. You will give an ideal answer. Death, passing away या demise, कोई भी एक word. Whom does that girl refer to? That girl refers to the poet's mother in the photograph. When did the poet's mother die? ये वही क्वेश्चन है जिसको मैंने अभी थोड़े टाइम पहले जब मैं आपको पोएम एक्सप्लेन कर रही थी बताया था. The poet's mother died 12 years ago. Explain the phrase, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी एग्जाम में सेट हो ही जाता है. The phrase means that the silence, the vacuum, सब वैक्यूम के स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे, उसमें मिस्टेक नहीं करेंगे. Caused by the death of her mother has left her at loss of words. कुछ कहने के लिए ही नहीं है, she निशब्द है, बिल्कुल मुश्किल है कुछ भी कहना इस परिस्थिति के बारे में, इस सिचुएशन के बारे में. She has nothing to say. She has accepted her mother's death gracefully and knows that she should move on. और कोई भी चारा नहीं है, सिर्फ इतना कर सकते हैं कि एक्सेप्ट कर लो जो भी कड़वी सच्चाई है लाइफ की और मूव ऑन करो लाइफ में. द नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पर्पसफुली रखा है. यूजुअली स्टूडेंट्स पोएट्स या पोएटिस के नाम याद नहीं करते हैं
तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पोएट किसका था। एंड एग्जामिनेशन में अक्सर मोर ऑफन देन नॉट one question is set on the name of the poem and name of the poet from which the poem has been taken. जब ये इतना ही प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में आ ही जाता है, तो क्यों ना सारे पोएम्स की और उनके पोएट्स की एक लिस्ट बना ली जाए और सबको बाय हार्ट लर्न कर लिया जाए। और इसका आंसर मैंने नहीं लिखा, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप सोचो एक बार कि हम किसकी पोएम कर रहे हैं और हमारी पोएम का नाम क्या है। नेम द पोएम एंड द पोएट फ्रॉम वेयर द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन। सो द पोएम फ्रॉम विच द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन इज अ photograph, and the name of the poet is Shirley Toulson. ऐसा भी नोटिस किया गया है, स्टूडेंट्स रिमेंबर द नेम शिरली टूल्सन। अब स्पेलिंग याद नहीं है, कोई SH लिख देगा या कोई SHE लिख देगा आई की जगह पे, LEY की जगह पे LAY लिख देंगे, टूल्सन याद नहीं होगा। ठीक है, दो अलग अलग पोएट्स के एक का फर्स्ट नेम एक का सेकेंड नेम जोड़ देंगे। ठीक है, so to avoid such mistakes, it is an examination tip, it's an advice that please make a list of all the poems in your syllabus, साथ में उनके पोएट के नाम लिखो और सबको बाय हार्ट लर्न करो। और एग्जाम में जब ये क्वेश्चन का आंसर लिखना हो तो कोशिश करो कि ऐसे न लिखो, द वे आई हैव सेड, पूरा सेंटेंस फॉर्म में आंसर को लिखो। The last question of this particular poem is, the three stanzas depict three different phases. What are they? I have touched this point when I was discussing the poem. The three phases of the stanza. In stanza 1, the childhood of the mother has been depicted and the sea holiday has been depicted. In stanza 2, the poet is a child and mother is thinking about her childhood. The mother is now not as young as she was in her picture. She has grown old, she has her own baby now. And in stanza 3, the mother has passed away and the poet is lonely. इन्हीं value points को weave in करके, if we write an answer, the answer will be an ideal answer. So with that, I think I should sign off. I've been able to touch every aspect of this particular poem. If you see this video carefully, I think you will be in no doubt about any aspect of this particular poem. Thank you and keep watching the other enriching sessions.